تو الحمدللہ ان دونوں بھائیوں کو، دونوں فریقین کو ہم نے سمجھایا، اور اب اداروں سے انہوں نے درخواستیں بھی اٹھا لی ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو ہماری قائدین نے تربیت کی ہے الحمدللہ، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ دھوپ کی تپش اور گرمی اور سیلاب اور وہ حبس میں الحمدللہ ہمارے بھائی پیش ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں جہاں نہ ہمارے ادارے پہنچ سکتے ہیں، نہ گورنمنٹ پہنچ سکتی ہے، ہمارے بھائی وہاں پہ بھی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان ملک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہر لاہور میں امن و امان برقرار رکھنے اور شہر لاہور کو خوبصورت خوشگوار بنانے میں مرکزی مسلم لیگ ایک بار پھر سب سے آگے دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت لنڈا بازار کے مرکزی آفس میں موجود ہوا۔ آج مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور تاجر برادری کی ہر دل عزیز شخصیت سینئر تاجر رہنما حافظ صلاح الدین نے دو فریقین کے مابین صلح کروا دی ہے۔ یقیناً صلح کروانا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بڑا عمل دکھائی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا تنازع دو تاجران کے مابین تفرقے کے باعث نظر آتا تھا، اس میں اپنا عملی کردار ادا کرتے ہوئے اپنے عملی نمونے سے جو دونوں فریقین کے درمیان صلح کروائی گئی، ایک بڑا تنازع ہونے سے روک دیا۔ حافظ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اپنے قائدین کے حکم کے مطابق جس طرح مرکزی مسلم لیگ کے قائدین نے ہر بار اپنا عملی کردار ادا کرتے ہوئے فریقین کے مابین نہ صرف صلح کرائی بلکہ امن و امان میں ہمیشہ قائم کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کیا۔ حافظ صلاح الدین صاحب سے ہم مزید بات کرتے ہیں۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں امن و امان قائم کرنے کی بات ہے، مرکزی مسلم لیگ کا جو سر فہرست میں ہمیشہ نام سنائی دیتا ہے، جب قائدین کے حکم پر چلتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے بھی بیشتر آپ نے صلح کروائی، مصلحت کروائی، اور اس چھتری تلے، اس چھت کے ساتھ تلے آپ نے لوگوں کے درمیان جو مصلحت قائم کی، یہ تنازع آخر تھا کیا؟ کس طرح پیدا ہوا؟ آپ کو کس طرح پتہ چلا اور کس طرح آپ نے دانش مندی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا اور آج الحمدللہ دونوں فریقین کے مابین صلح ہو چکی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کو یقیناً پہلے بھی پتہ ہے کہ الحمدللہ مارکیٹوں کے اندر ہمارے دفاتر ہیں، اور صدور جو ہیں مارکیٹوں کے، اللہ کی توفیق سے وہ کوآرڈینیشن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کہیں پہ مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو الحمدللہ ہمارے آفس میں باقاعدہ ایک درخواست دی جاتی ہے، اپلیکیشن دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اپلیکیشن دی تھی ابوذر بخاری صاحب نے، تو انہوں نے جو لنڈا بازار میں گارمنٹس مارکیٹ ہے، اسیسری کا کام ہے ان کا، تو وہاں پہ یہ پلازا بنا رہے تھے، تو ساتھ ایک اور دکان بن رہی تھی، تو وہاں پہ کچھ جو بھائی ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی، اور اس طرح وہ عدالتوں میں، کچہریوں میں اور ایک دوسرے کے خلاف اداروں میں درخواست بازی، جس کی وجہ سے کچھ شرپسند عناصر بھی اس میں شامل تھے جو اس کو ہوا دے رہے تھے۔ تو یہ ہم نے جب اپلیکیشن آئی تو ہم نے جب وہ اپلیکیشن پڑھی تو ہم نے الحمدللہ دونوں فریقین کو بلایا اور یہ تشریف لائے، اور اللہ کی مہربانی سے موقع بھی دیکھا اور دیکھا کہ جائزہ لیا کہاں پہ خرابی ہے۔ تو الحمدللہ ان دونوں بھائیوں کو، دونوں فریقین کو ہم نے سمجھایا، اور اللہ کی توفیق سے ان کی سمجھ آئی بات، اور یہ صلح اور صفائی کے لیے آمادہ ہوئے، اور اب اداروں سے انہوں نے درخواستیں بھی اٹھا لی ہیں، اور الحمدللہ یہ دونوں وہاں پہ دونوں تاجر ہیں، دونوں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے دونوں کو کہا کہ بھئی آپ اچھے طریقے سے کاروبار کریں، بزنس کریں، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو ہماری جو بزرگوں نے تربیت کی ہے، ہمارے قائدین نے، جس طرح اشتیاق بھائی بھی مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح حاجی جمشید صاحب ہیں، صدر لنڈا بازار، نیو اتفاق مارکیٹ شیخ دنان صاحب ہیں،
इसी तरह और भी भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मार्केटों में कोई भी मसाइल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए जो हमारे कायदीन ने तरबियत की है अल्हम्दुलिल्लाह उसको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए, उस तरबियत को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसाइल हल करते हैं। आज जैसे देखा आपने कि दोनों फ़रीक़ैन में बड़ी खुश उसलूबी से सुलह सफ़ाई हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी खिदमत का काम करते रहेंगे। आप सब देखें, चूँकि आपका जो एक आपकी वुसअत है और आपके ताल्लुकात हैं वो ऑल ओवर द लाहौर जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है यकीनन आप उनके दिल में बसते हैं और आपके उनसे ताल्लुकात वाबस्ते हैं। और मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द पाकिस्तान उसकी वुसअत जो है वो मुसलसल तेज़ी से बढ़ती है। लाहौर में कोई भी तनाज़ा होता है यकीनन जब लोग थक जाते हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंस कर धंस जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा इदारा, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें उनका मसला भी हल हो और बामी जो मफाहमत के साथ किसी मसले के हल की तरफ जाया जाए। मरकज़ी मुस्लिम लीग और आप क्या तैयार हैं ताजिर बरादरी के कोई भी किस्म का तनाज़ा हो उसमें मसलहत के साथ उसका हल निकालें? देखें, ये आप मार्केटों के सदूर से सवाल करें कि क्या मरकज़ी मुस्लिम लीग कभी भी किसी काम में, खिदमत में, दावत में पीछे रही है, तो वो आपको जवाब देंगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मार्केटों के सदूर से ये सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान मरकज़ी मुस्लिम लीग आपको हर मार्केट में, हर बाज़ार में, हर दुकान पे आपको नज़र आएगी खिदमत का काम करते हुए। जैसे ये सैलाब का भी काम माशाल्लाह अब आप देखें गंडा सिंह वाली साइड पे जो सैलाब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रिलीफ़ का काम हो तो भाई वहाँ पे पहुँचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं, खाने पका के भाई तकसीम कर रहे हैं। और आप देखें धूप की तपश और गर्मी और सैलाब और वो हबस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई पेश हैं। वो खाना पका कर, एक तो राशन होता है वो भी तकसीम कर रहे हैं, तो खाना पका कर वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ ना हमारे इदारे पहुँच सकते हैं, ना गवर्नमेंट पहुँच सकती है। हमारे भाई वहाँ पे भी खिदमत का काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये हम करते रहेंगे अल्लाह की तौफीक से। मार्केटों के अंदर जो भी हमारे पास आएगा, दरख्वास्त लेकर आएगा, तो इंशाअल्लाह उसकी दादरसी होगी और इंशाअल्लाह हक़ और इंसाफ और मेरिट पर। बेशतर ताजिर बरादरी इस वक्त इंतज़ार में है कि कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इदारा हो जो उनकी मदद करे। तो उसके लिए भी कोई, चूँकि आपने भी बातें की कि कोई लाहौर की मार्केट ऐसी नहीं है जिसमें हम कब्ज़ा माफिया या फिर कोई मार्केट में हम बतागुड़ चलने नहीं देंगे। तो कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है ऑल ओवर द लाहौर जिसमें इनके सदबाब के लिए कोई? असल में मरकज़ी मुस्लिम लीग के जितने भी ताजरान विंग हैं हर लाहौर में हमने वो मार्केट के लेवल पर जो है वो ताजर विंग बनाया हुआ है और हर इलाके में एक भाई मरकज़ी मुस्लिम लीग का ज़िम्मेदार मौजूद है जो वहाँ पे अमूमी भी देखता है और मार्केट भी देखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मार्केट के अंदर तकरीबन लाहौर की जितनी बड़ी मार्केटें हैं उनमें हमारे ऑफ़िस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफ़िस बनाने का मकसद ही यही है कि जहाँ पर करीबी जो सेंटर हमारा खिदमत सेंटर है, करीबी हमारा जो उस मार्केट के पास ऑफ़िस है, वहाँ पे भाई ताजर साथी आएँ। वहाँ पे कोई अगर सूद से मुतासिर है या कब्ज़ा ग्रुप माफिया से मुतासर है या बत्ताखोर माफिया से मुतासर है तो वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे। जब वो एप्लीकेशन देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सालसी जिसको कहते हैं हम सालसी वहाँ करते हैं। और सालसी अब तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदरून में ख़ास कर ये माहौल बन गया है कि यार वो मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों के सब पास जाएं और वहाँ पे वो चाय भी खुद पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और फीसबिल्लाह काम भी करते हैं। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं जाना जो फ़रीक़ैन थे उनसे भी आपकी बात करवाएं। सर आप ये बताइएगा कि आज सुलह आपके दरमियान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कायदीन ने करवाई है, बताइएगा मुतफ़िक है इस सुलह से जो सुलहनामा आज आपने दस्तखत भी किए? जी भाईजान मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं और भाई की मेहरबानी उन्होंने ये मामला बहुत अच्छे तरीके से हमारा निपटा दिया। नाज़रीन फ़रीक़े दोम हमारे साथ मौजूद, उनसे उनके भी चंद जो आज की राय है और उनके जो तासुरात हैं वो आप तक पहुँचाना चाहेंगे। सर ये बताइएगा अबूज़र भाई कि आज चूँकि एक बहुत बड़ा एक तनाज़ा होते होते आज अल्लाह ताला ने उसे बचा दिया और आप दोनों फ़रीक़ैन ने बामी रज़ामंदी के साथ सालसी के साथ इस मामले को हल किया। तो बताइए मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो अपना सफ़े अव्वल का किरदार अदा कि जिसमें हाफ़िज़ सलाउद्दीन को इसमें किरदार जाता है, क्या पैगाम दें? ये मामला हमारा तकरीबन 7 से 8 माह पुराना है। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत दिन रात हमारे पीछे खड़ी हुई थी और सालसी का ही पैगाम मिला था हमें कि आपने कोई झगड़ा नहीं करना, कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं खड़ा करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सालसी का ही पैगाम दिया है अपनी जो हमारी मुद्दा अला पार्टी थी उनको। तो फिर 2-4 दिन पहले सलाउद्दीन भाई ने बैठ के हमारा जो है ना वो पैचअप करवा दिया कि यार ये मामला इसको ख़त्म करें। तो ये रोज़ रोज़ के इस तरह के मामला
ये अच्छे नहीं होते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से जो है ना आप देख रहे हैं कि सारे भाई हम आपस में इत्तेफाक राय से अपने अपने मामलात हल करके अब इंशाल्लाह हम वापस घरों को जाएंगे। और जितने भी मामलात थे हमारे तनाज़ात के थे, कोई झगड़े थे, कोई केस थे, कोई भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के ज़रिए जो है ना वो। जी नाज़रीन, सदर न्यू इत्तेफाक मार्केट लंडा बाज़ार मेरे साथ अदनान भाई मौजूद हैं। सर, आज चूँकि आपके मार्केट में और मरकज़ी ऑफिस है जहाँ आज कई सुलह की तकरीब मुनक़्क़द हुई, तो ये एक बड़ा अहम आज किरदार अदा किया मरकज़ी मुस्लिम लीग और हाफिज़ सलाहुद्दीन ने, क्या आपके तासुरात हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी। अल्लाह पाक ने हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों के मसले हल हो जाते हैं। जो आपस में लोगों के 12-12, 13-13 साल से मसले चल रहे होते हैं ना, उसमें हमारी जमात एंटर होती है अल्लाह के हुक्म से। सालसी तरीके से हम उसको मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह आपस में जो भी हमारे मामलात होते हैं लोगों के, हम आपस में इनको क्लियर कर लेते हैं और इंशाल्लाह वो लोग हमसे खुश होके जाते हैं। और उनके मामला जो होते हैं, जो 13 साल से 14 साल से उलझे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से बाहमी रज़ामंदी से एक दोनों को फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह पाक हमसे ये काम करवा देता है। जी मुमताज़ हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा है और बाबू होटल के ये CEO हैं। सर, ये देखिएगा कि आज आपने ख़ुद देखा, ये तमाम मनाज़र मनाज़ा फरमाया। आज चूँकि मसलहत और सालिसी का इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से एक कशमकश की सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल में मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो किरदार अदा किया, क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये एम है, ये मोटो है कि कहीं भी फसाद नहीं होने देना है, कहीं कब्ज़ा ग्रुप को पनपने नहीं देना है, कहीं जबर नहीं होने देना है। जहाँ भी जुल्म जबर कोई ऐसी सहूनी ताकत किसी मज़लूम के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करेगी, मरकज़ी मुस्लिम लीग वहाँ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मज़लूम के साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे करेगी। आज भी अमीर मोहतरम सलाहुद्दीन भाई ने यही किया है कि इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे किए हैं, फ़रीक़ीन को मुतमिन किया है, इंसाफ उनकी दहलीज़ तक पहुँचाया है, उनको खुश किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया है। और ये मरकज़ी मुस्लिम लीग का तुर्रा इम्तियाज़ है कि हमेशा वो ऐसे ही इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते हैं जिससे फ़रीक़ीन खुश होते हैं और अल्लाह भी खुश होता है। ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है, ये सारे मर्द मुजाहिद हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये नेक काम कर रहे हैं। शहर लाहौर में ताजर बरादरी में मसालियत और सालिसी कायम करने में जो मरकज़ी मुस्लिम लीग और मरकज़ी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर ताज रहनुमा हाफिज़ सलाहुद्दीन ने जो अपना किरदार अदा किया, अपने कायदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने तमाम ताजरान के जो जज्बात हैं और जो दोनों फ़रीक़ैन ने जिस तरह से रज़ामंदी के साथ और जिस तरह खुशी के साथ आज आपस में बाहमी सुलह की और आज मुआहदे पर दस्तखत किए, यकीनन उनके तासुरात ये बताते हैं कि लाहौर की जो ताजर बरादरी है और लाहौर के जो सीनियर ताजरान हैं और वो लोग जो किसी न किसी मसाइल में, किसी न किसी मसले के भंवर में फंस कर मुश्किलात का शिकार हैं, आज यकीनन ताजरान के जज्बात ये बताते हैं कि ताजरान मरकज़ी मुस्लिम लीग के किरदार और उनकी टीम के जो जज्बे हैं उनको सराह रहे हैं। जी, What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.